Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So first of all, really sorry I wasn't able to upload the videos in the past few days because having a glitch with my laptop and my system over there. So मुझे पूरी Windows दोबारा से install करनी पड़ी and everything got shuffled up, right? So really sorry for that guys, but the videos won't stop. Videos will be coming as soon as possible. ठीक है, आज से start है दोबारा से videos. So guys, we are starting a new module in UiPath called working with files and folders in Studio. Let's get quickly started and let's see what is the first chapter in our module. Let's get started. So yeah, so this is the module working with the files and the folders in UiPath. So the first part will be the overview of the activities and the methods. क्या क्या methods है हमारे पास, what is a file and a folder automation. यहाँ पे हमारे पास काफ़ी methods हैं. अगर आपको फाइल को कॉपी करना है, create, delete, move, rename, browse for me, we have it, system will be asking us for a file and we have to use it inside an automation. So it can be type of an attended workflow over there if we are using a browse for activity. ठीक है, check if an item exists means if an item is existing inside that folder or inside any file, so we can use this property, right? A file exists or folder exists property, iterate through for each file in a folder or for each folder in a folder property. Get info will be getting the information of the file. तो गाइज यहाँ पे जो हमें एक्टिविटीज़ यूज़ करनी है वो उसके लिए पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड रहता है इन UiPath कॉल्ड द सिस्टम एक्टिविटीज पैक. ओके गाइज, यहाँ पे जो मैंने अभी देखा है, इस जो मॉड्यूल की हायरार्की है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ओनली. ठीक है, इस पे इन्होंने कुछ ऐसे कंसेप्ट्स नहीं बताए हैं. दीज आर रियली जस्ट नॉर्मल एक्टिविटीज, राइट, विच विल बी डूइंग थ्रू द प्रैक्टिस सिनेरियो. वन मोर ट्विस्ट ओवर हेयर इज गाइज दैट इन्होंने जो प्रैक्टिस हमें दी है तो UiPath अकेडमी, दैट इज बेस्ड ऑन वीडियोज ओनली, जो उन्होंने यहाँ पे वीडियो बता रखे हैं, राइट. सो इस वीडियो में जो एक्टिविटीज है उसका कंटिन्यूएशन प्रैक्टिस 1 पे है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द video in this part first, then we'll be moving ahead with our this practice. So we'll be watching the video here. In Okay. the next video, you'll do hello and I hope this is visible to you guys. hello and welcome to the first part of this demonstration on the topic of file and folder automation. In this video, you'll discover how to use file and folder activities in UiPath Studio to perform each. So Let's start. In the system the category of main the activities panel, you'll find the file of this subsection, workflow. where all of the activities specific to Let's file see. and folder are automate. We can mark the location of a file. So guys, these are all the file activities that they have shown inside the video. File, append line, everything, copy file, delete file, create folder, delete folder, for each folder in the folder, right? For each file in folder, everything is there in the, if you'll be typing a file over there, so you'll be getting all these activities, right? File or a folder with the move activities. So we can also use the Path move activities. exists ठीक है, validates ये आपको करके each दिखाएंगे other, पूरा. not necessary. So first ask the user to select a .zip file containing the client information. So what we can do now, we can use it and इसको हम use कर सकते हैं. We can go inside of this part, chapter 67. I'll be saying practice files and folders dem. Right, quickly create our process and let's see in the video what they have said. First, client information, ठीक है, renames the contracts using the folder company name and stores the contracts in a dedicated folder. Precondition: the zip file contains folder name after client companies. The company folders contain contracts. The contract file names contain the string contract. Okay. So we will be going over here. तो guys, हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं इस हमें यूज़ करनी है. इट इज़ इनसाइड ऑफ द system.activities package and it is by default over there. हमें कोई एक्स्ट्रा उसे करने की जरूरत है इंस्टॉल. First we will be using a browse file
एक्टिविटी, ब्राउज फॉर फाइल एक्टिविटी, तो ये हमसे पूछेगा कौन सी फाइल हमें चाहिए एंड उसका जो सेलेक्टेड फाइल पाथ है इट विल बी स्टोरिंग इट इन अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल कॉल्ड इनपुट फाइल। हम उसे नाम दे रहे हैं इनपुट फाइल का, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके इट इज़ ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द स्ट्रिंग पार्ट। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो इट विल बी आस्किंग मी फोल्डर ओवर दे, या फिर मुझे पूछेगा कौन सा मुझे पाथ में रखना है आगे के वर्क फ्लो पे। ठीक है, लाइक दिस। नाउ व्हाट दे हैव डन, client information renames the contracts using the folder company name and stores the contract files in a dedicated folder। मतलब अभी हमें क्या है यहाँ पे जो इनका जो पहले हमने ब्राउज करा ली है फाइल, उसके बाद व्हाट विल बी डूइंग, विल बी यूजिंग द गेट इन फाइल इन्फो। ठीक है, इट इज अ एक्टिविटी इन UiPath विच विल बी प्रोक्योरिंग द फाइल इन्फो फ्रॉम द फाइल। मैं आपको दिखाई तो कौन सी फाइल होगी, वो हमारी एस्टर इनपुट फाइल होगी एंड इसको मैं सेव करूँगा एक वेरिएबल में कॉल्ड फाइल इन्फो। ठीक है, अब ये जो मेरा फाइल इन्फो है ये कौन कौन से वेरिएबल्स को रखता है, क्या 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 इसके हम थ्रू ले सकते हैं, आई विल बी शोइंग इट। राइट, जस्ट 1 सेकेंड। Yeah, so let's go in the debug mode and let's try to understand. Files will be this part, documents and open, right? तो ये हमारा फाइल है पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोलूँगा फाइल इन्फो के अंदर मेरा आ गया है सी ड्राइव यूजर जय वर्किंग फाइल में फोल्डर पार्ट 1 डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट डॉक्यूमेंट डॉट जिप। अब इसके अंदर मुझे देखना है तो व्हाट ऑल आई कैन यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है डायरेक्टरी फाइल एंटर। तो डायरेक्टरी कौन सी, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी है। ठीक है, अदर पार्ट विल बी नेम इज क्लाइंट्स डॉक्यूमेंट डॉट जिप प्रॉपर फाइल नेम विद द एक्सटेंशन। ठीक है, इट विल बी ओवर देयर। अब मैं अगर बोलूँगा ओनली एक्सटेंशन तो डॉट जिप विल बी देयर। ठीक है, जो भी एक्सटेंशन है मेरा बता देगा कौन सा एक्सटेंशन है हमारे पास। ये मैं फाइल इन्फो की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आपको गाइज। एंड देयर इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी कॉल एग्जिस्ट, तो यहाँ पे आएगा ट्रू बिकॉज द फाइल इज ओवर देयर, इट इज अ बूलियन वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स इन नेचर। ठीक है, एंड तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज इनसाइड ऑफ अ फाइल इन्फो वेरिएबल। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आएगा नेम, लेंथ कैन ऑल्सो भी देयर, हम लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी नेम इज देयर, डायरेक्टरी इज देयर, फुल नेम वी कैन टेक, right? Full name will be, this whole path will be there, right? So these are all the properties of a file info variable and this variable will be of type of file info. Okay, stop. Let's see what they have done ahead. Get file info, okay, and now what they're Where doing, we can choose the zip file from. Let okay, they are saving the name into an input folder path। जो भी मेरा folder path है, मतलब input जहाँ मेरा document है, तो they are saving the name over there। जैसे मैंने आपको यहाँ पे use the दिखाया। immediate pattern of the file. And one more thing guys, इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, because I have seen the video before only, they have what used, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, तो मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो what they have used, file info dot directory name। ठीक है, ये मेरा डायरेक्टरी नेम आ गया है एंड इफ आई विल बी फाइल इन्फो डॉट डायरेक्टरी, ये है डायरेक्टरी नेम विल बी दिस एंड फाइल इन्फो डॉट नेम फाइल बी डूइंग गिविंग मी द नेम ऑफ द फाइल। एंड मैंने अभी आपको बताया था फाइल इन्फो डॉट एक्सटेंशन विल बी गिविंग मी द जिप। तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव सब्ट्रैक्टेड दिस पार्ट विद दिस पार्ट। अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे खाली क्या मिलेगा, फाइल इन्फो, मतलब खाली खाली नाम मिलेगा विदाउट द एक्सटेंशन। ठीक है, विदाउट द व्हाट, विदाउट द डॉट जिप फाइल एक्सटेंशन, वो सिर्फ क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिलेगा। व्हाट दे हैव डन, फाइल इन्फो डॉट नेम डॉट लेंथ, इसकी लेंथ जितनी भी लेंथ है, नेम की लेंथ है, इनको इन्होंने माइनस किया। फाइल इन्फो डॉट एक्सटेंशन डॉट टू
स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक है। अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा और फाइल बी यूजिंग अ व्हाट सब स्ट्रिंग, मैंने आपको बताया था गाइस, सॉरी, सब स्ट्रिंग 0216, तो यू फाइल इनफो सब स्ट्रिंग, 1 second. Okay, so what they have done guys, they have used this expression, और मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल इन्फो डॉट, अगर मैं करूँगा यहाँ पे नेम, ठीक है, एंड आई विल बी गेटिंग द लेंथ ऑफ इट माइनस फाइल इन्फो डॉट एक्सटेंशन डॉट लेंथ। एक्सटेंशन की लेंथ है 1 2 3 4, क्योंकि डॉट विल बी काउंटेड एज अ कैरेक्टर ओवर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 आ गया है, एंड व्हाट दे हैव डन, अब ये 16 को मैं आपका सब स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स की तरह यूज करूंगा, और यू कैन से द काउंट, ठीक है, SUBSTRING सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे मेरे पास होगा फाइल इन्फो डॉट नेम। तो जो मेरा नेम आ रहा है दैट इज द होल पार्ट, इट विल बी व्हाट, यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, डॉट नेम, जो मेरा नेम था वो था क्लाइंट डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैं इस नेम की इसके अंदर मैं सबस्ट्रिंग लगा रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्टली फाइल इन्फो के अंदर सबस्ट्रिंग लगा दूंगा तो मेरा डायरेक्टली फुल पाथ दे देगा। आई जस्ट वांट दिस पार्ट, तो इसके अंदर स्टार्टिंग विद द जीरो इंडेक्स, ठीक है, जीरो से लेके हमने क्या किया, इसको फाइल इन्फो एक्सटेंशन लेंथ, मतलब एक्सटेंशन का जो लेंथ था उसको माइनस किया है, दैट इज दिस पार्ट हमने माइनस किया है। ये इसमें से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूंगा, ऑब्वियसली मुझे सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, तो वी हैव अवर दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर यहाँ तक, और इनको उठा के इन लोगों ने क्या किया है, डाल दिया है यहाँ पे आपका मल्टीपल असाइन के अंदर, और वी कैन यूज द नॉर्मल असाइन एज वेल, ठीक है। तो इनको उन्होंने दे दिया है str इनपुट फोल्डर पाथ, एंड आई जस्ट गिव द एक्सप्रेशन लाइक दिस, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग हो गया है, स्ट्रिंग में इसका आंसर आएगा पूरा, नॉट इन द इन 32 का आंसर नहीं आएगा, ठीक है। वन मोर थिंग दे हैव डन, str extracted folder आउटपुट, सॉरी ये पार्ट यहाँ पे है, जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर का आउटपुट है इट इज ओवर देयर, ठीक है। जो मेरा इनपुट फोल्डर है ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डॉट नेम, यही इन्होंने यहाँ पे We'll किया copy the डायरेक्टली डॉट expression as we'll use it for the extracted folder path. And now we can stop debugging ठीक है, and remove the and be breakpoint. setting another Let's folder create a called new variable for the contracts. extracted folder path. What they have done, they have used this part folder path plus they have concatenated, And then, as it file with directory to the input folder contracts, path, like we this. add the copied expression from आप earlier. देख सकते हैं यहाँ पे अभी, Now this path is complete. we have to use a slash also guys with this part, because ये नहीं देगा हमें str underscore input path, sorry path, ठीक है, प्लस like this and like this, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अगर मैं यहाँ पे इन्होंने आई डोंट नो इन्होंने लंबा पूरा ये क्यों लिया है, क्लाइंट डॉक्यूमेंट नॉर्मल भी लिख सकते हैं यहाँ पे लोग क्लाइंट डॉक्यूमेंट, बट दे हैव जस्ट यूज्ड टू मेक यू गाइज नो, तो हमने भी यही यहाँ पे लिया हुआ है। आई होप आपको ये एक्सप्रेशन पूरा समझ में आया हो कि कैसे हमने इसको फॉर्म किया है इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। सेव व्हाट वी कैन डू नाउ, यहाँ पे इनपुट फोल्डर पाथ है, डायरेक्टरी नेम मेरा पूरा आ गया विद इंक्लूडिंग द जिप पार्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड फोल्डर आउटपुट, एक्सट्रैक्टेड फोल्डर आउटपुट ये है जो मेरा इनपुट फोल्डर पाथ होगा, ठीक है, प्लस स्लैश, तो हमारा स्लैश वहाँ पे आता है, दिखाए तो कहाँ पे, तो ये है
ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये स्लैशेस आ रहे हैं, तो ओवर देयर इट विल बी स्लैश एंड हियर इट विल बी क्लाइंट्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएगा, एंड आई थिंक इनवॉइस इज ऑल्सो देयर, दे The हैव next यूज्ड step इनवॉइस is to ऑल्सो। create the path for the contracts folder. We can meta, No invoices, okay. I think there then was an invoice annotate also. it. So now what the activity next is unzip the input file. Okay, so we'll be using an unzip input file also. Unzip, right, the files to extract. So guys, इन्होंने यहाँ पे जो files ले रखी है extraction के लिए, With the context in place, it will be extracted input, sorry, it will be input file path। ठीक है, ये जो फाइल है मेरे पास जिसको एक्सट्रैक्ट करना है उनको, ठीक है, हम लोगों को जिन्हें एक्सट्रैक्ट करना है, इट विल बी str इनपुट फाइल, जो कि ये मेरे पार्ट है, और जो डेस्टिनेशन फोल्डर है इट विल बी str extracted folder output। ठीक है, और अब व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से एक्सट्रैक्टेड फोल्डर। ठीक है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज, मैंने आपको बताया था, यहाँ अगर आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी चेंजिंग ओवर हियर एज वेल, राइट। इफ यू चेंज इन वेरिएबल्स पार्ट, यू विल बी चेंजिंग ओवर इन द डिजाइनर पार्ट एज वेल, इन द स्टूडियो, द मेन पार्ट। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, एक्सट्रैक्ट टू द डेडिकेटेड फोल्डर मींस एक्सट्रैक्ट द कंटेंट्स इनटू अ न्यू फोल्डर विद द सेम नेम एज द जिप फाइल। अगर मैं यहाँ पे एक न्यू इसको टिक कर दूंगा तो इट विल बी क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। ठीक है, एंड इट विल बी डॉट जिप का जो मेरा एक्सट्रैक्ट फोल्डर होगा उसके अंदर नहीं करेगा, अलग से फोल्डर बनाएगा। ठीक है, सेम नेम एज द जिप फाइल, बट वो जिप फाइल नहीं होगी, इट विल बी एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द जिप फाइल, मीन्स अनजिप्ड फाइल होगी पूरी की पूरी विद द सेम नेम एज द क्लाइंट्स डॉक्यूमेंट, जो है मेरे पास क्लाइंट्स डॉक्यूमेंट जिसको एक्सट्रैक्ट करना है। लेट्स सी व्हाट दे हैव डन। oh, just to show you how the end result आई will थिंक दे हैव appear. डन द सेम पार्ट। Now with this in mind, but you've probably या, so they have said they have done the same part and we will be running the workflow now. Just see that what it's going on over there. Client documents open. Now let's see the client documents guys, that वहाँ पे एक unzipped file आई है कि नहीं आई है। We're going to the downloads, folders and यहाँ पे documents। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक अलग से client documents बन के आ गए। ठीक है, ये पार्ट अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, I'll be deleting this part। ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो लेट्स सी व्हाट द आउटपुट विल बी नाउ। डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ओपन डाउनलोड्स, टना। तो यहाँ पे अभी हमें अगेन आपने देखा होगा, बट अंदर का जो क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स था वो हट गया है। So we are not getting one extra client documents folder that can be arranged as well। ठीक है, ऐसे भी ठीक है, वैसा भी ठीक है, but they have done like this, so we'll be doing it like this only। इसको फिर से यहाँ पे डिलीट करेंगे and just refresh the workflow, minimize it and run it again just to be in the tandem with these guys। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से क्लाइंट डॉक्यूमेंट आ गया, बट इस बार अगेन एक और क्लाइंट डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे मिला है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट दे हैव डन नाउ। if we open extract file that we generated सो वी हैव टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर। इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, लेट्स सी, activity and provide the path to the contracts folder that we generated earlier. सो दिस इज द पाथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर जो इन लोगों ने यहाँ पे जनरेट करवाया है हम लोगों से, एंड दे आर क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर ओवर देयर। Directory as Right. the input documents folder holds open the documents folder. We can view the folders in the file explorer. The client documents folder holds all of the extracted files. Whereas the contracts folder hasn't been populated yet. One last detail to prepare for the next part of this demo. Renaming the create file action. Case the path of the file than just the we generate, rename them, and you'll make use of a file and folder iteration. राइट, सो यहाँ पे लास्ट पार्ट फॉर दिस वीडियो इनसाइड दिस पार्ट विल बी create folder, and the folder will be
what the folder will be the contracts folder over there, ये path होगा हमारा folder का, and जब मैं इसको यहाँ पे run करूँगा, you guys can see client documents unzip करके यहाँ पे हमारे पास एक separate folder बन जाएगा contracts का, ठीक है। तो contracts folder is not yet populated क्योंकि हमने उसके अंदर क्या है अभी कुछ रखा नहीं है, ठीक है। So we'll have to rename it in the second part. ये हमारा first part का वीडियो है, second part will be this. Let's see. Business situation we are. In the first part of enable, create a folder, clear, complete the task. Folder to work folder, enter sorting criteria, and set. So now what they are doing, We'll they are iterate. using an iteration of for each loop जो मैंने आपको बताया था guys, for each loop, तो it is a different type of loop. It will be only seeing the file inside a folder, ठीक है। जो भी files हैं उसको क्या करेगा, rename करेगा, renames contracts in folders and moves Through them the to a extracted dedicated folder. folders, right? And here we Let's can see. add its path. So यहाँ पे हमारे पास एक for each loop आ गया है, for each file in the folder, ठीक है। for each file लिख सकते हैं हम लोग, और कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे फोल्डर क्या होगा हमारा, एक्सट्रैक्टेड फोल्डर, जो भी मेरा पाथ है यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड फोल्डर का ये पार्ट, राइट। सो now let's see what As they the have done. folder contains subfolders that hold documents, including the contracts that we're interested in, processed with each iteration loop. About the to.pdf. We'll now add a log message to provide information about the file that is processed. To run the project demo, we choose the client documents.zip file. That means that we have access to the name property that provides the current file name. Moreover, we can also choose to get the name of the parent directory with the directory name property, or the full path with the full name property. These are just a few ways to inspect the current file variable and its properties. The project panel, rename and move the file is that the current file name contains the keyword contract, version property, directory, dot, name and natural, the parent directory of the file. सो गाइज यहाँ पे अब ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दे आर रीनेमिंग द फाइल एंड मूविंग देम टू द करेक्ट फोल्डर इनसाइड। अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखता है तो कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर के अंदर जाएगा जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इट विल बी इंक्लूडिंग सब फोल्डर्स एज वेल। वाई बताता हूँ द रीजन, वी विल बी इंक्लूडिंग द सब फोल्डर्स बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर सब फोल्डर्स भी हैं, मतलब एक के अंदर इस तरह के नेस्टेड फोल्डर्स हायरार्की। इसके अंदर जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है उसका टाइप है पीडीएफ, राइट, इट्स अ पीडीएफ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ये मेरा पीडीएफ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। सो अब देख सकते हैं एडोब एक्रोबैट, इफ आई विल बी गोइंग इन द प्रॉपर्टीज पार्ट, so it is a pdf document, so that is why they have used a filter. We can also filter which type of documents we need to run the loop on, so dot pdf, so it will be what, using only the pdf over there, right? And they have also used a log message. A log message is also there, so what we can do, we can use file dot name. The file properties also have a naming convention over there, ठीक है। कौन सी फाइल मेरी यहाँ प्रोसेस हो रही है मुझे यहाँ पे दिखेगा। दे हैव ऑल्सो यूज द सेम पार्ट ओवर देयर, मैं आपको दिखा देता हूँ। करंट प्रोसेसिंग फाइल इज करंट फाइल डॉट नेम। करंट फाइल यहाँ इसलिए आ रहा है बिकॉज इन्होंने यहाँ पे इटरेटर है वो करंट फाइल रखा हुआ है, बट वी आर यूजिंग अ फाइल, तो वील हैव टू यूज ओनली फाइल। तो हम लोग भी ऐसे लिख सकते हैं दैट यू नो करंट file is like this, and then you can use file dot name, and इसका पार्ट में यहाँ पे इसको रखूंगा। so if I'll be clicking the debug now, ठीक है, find documents, open, so 1 second, so we have to, I think we have to not use like this. Let's see now,
तो इट वॉज माई बैड गाइज, मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक्स नहीं लगाया इन द PDF सेक्शन। यहाँ पे फिल्टर पे मुझे एस्ट्रिक्स लगाना था वेर एवर वी आर गिविंग एनी एक्सटेंशन फॉर द फॉर ईच फाइल और फॉर ईच फोल्डर इन फोल्डर लूप। तो फिल्टर में मुझे यहाँ पे एक टाइप का एस्ट्रिक्स लगाना पड़ता है टू इंडिकेट दैट दिस इज अ जिप फाइल, राइट। सो दिस इज इट, राइट। एंड यहाँ पे अब मेरे पास जो मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फाइल्स आ चुकी हैं। So this is contract 2022 over there, contract invoice, everything it is over there, right? तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे एक कंडीशन चाहिए। inside this I'll be writing फाइल जो कि मेरी करंट फाइल है, उसका जो नेम है, अगर it contains what contract, अगर उस नेम के अंदर मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिंग निकलता है, सो व्हाट आई विल जस्ट फर्स्ट राइट ओवर देयर कॉन्ट्रैक्ट फाउंड लाइक दिस। लेट्स सी व्हाट इज द होल सिनेरियो ओवर हियर। मिलता है उसको, नहीं मिलता है, क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स, या सो द फर्स्ट पार्ट विल बी करंट फाइल इज कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ जहाँ उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखा वहाँ वहाँ उसने कॉन्ट्रैक्ट फाउंड लिखा है, तो इट इज़ वर्किंग फाइन। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट वोंट बी फाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं यहाँ पे लगाता एल्स इनवॉइस फाउंड, तो यहाँ पे इनवॉइस फाउंड आता लिख के हर फाइल के बाद। ठीक है, एक फाइल होती यहाँ फिर आता, अगर फाइल ऊपर जाती फिर ये वापस आता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू just move the file, and they have also told us this part over there that अगर हम यहाँ पे रीनेम फाइल एक्टिविटी यूज़ करेंगे तो वो जो स्पेसिफिक हमारा जो फाइल है उसके अंदर फाइल ऑब्जेक्ट रीनेम अपडेट नहीं हो पाएगा, तो वी कैन डायरेक्टली यूज अ मूव कॉन्ट्रैक्ट फाइल ओवर देयर, राइट। सो वील बी यूजिंग दिस एक्टिविटी इन UiPath मूव फाइल एक्टिविटी फ्रॉम, I'll be using file dot they have used full name, and the destination will be where I have to use str_contacts Outcome. and one more thing guys, यहाँ पे हम लोग contacts folder path plus current file directory भी name भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इन लोगों ने लिखा हुआ है। I'll just show you guys. Directory of location. We start by preview the new location containing the new file name. For the new file location, name है जो we वहाँ पे start हमें by इसको new move location. करने हैं, In this right? case, we can use the move file activity directly. We'll move the file from the old location provided by the full name property to the new location containing the new file name. For the new location, we start by providing the contracts folder path, the parent directory of the file. To this, we append current file dot directory dot name and naturally the current file's name. Okay, so what they have done, they have nested expression over there। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन नेस्ट किया हुआ है। लेट्स सी, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे str contracts plus we have to use the file info over there। I think they have used the same part, no sorry, they have used a slash plus slash plus use file dot the current file name, the current file जो भी है मेरे पास यहाँ पे, current file dot directory dot name over there, and then after a small space you'll be saying the file dot name। ठीक है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। जो करंट फाइल मेरी उस समय चल रही है, मैं भी आपको इमीडिएट पैनल लोकस पैनल में करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। लेट्स सी। We can go ahead and rename the activity to other client documents. Don't Now need. what Let's they have clean done, up our let's space see. a bit. After running the project, you'll notice. Now we're ready. Let's do it. So they have also used a delete extracted document folder, Seeing the delete the folder path by also, using- right? At the last they have used, We do that by using the delete folder activity outside of the iteration.
let's quickly use it. Iteration is this part, so we'll have to use delete the folder, and this folder will be Let's deleting rename it Opted Folder Path. द एक्सट्रैक्टेड फोल्डर, मीन्स मैं बार बार उसको क्या है डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन फोल्डर जो नया बन रहा है इट विल बी डिलीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जो भी लूप चलेगा। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, एंड लेट्स क्विकली रन दिस वर्कफ्लो गाइस। क्लाइंट्स डॉक्यूमेंट इट विल बी अनजिपिंग इट नाउ। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरीथिंग इज नल एज आई विल बी प्रेसिंग स्टेप इनटू, दे आर वर्किंग नाउ। तो लेट्स डू लाइक दिस, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ नाउ। अब आप देख सकते हो str इनपुट फाइल है मेरी ये पार्ट, दिस इज प्रॉपर विद जिप पार्ट। str इनपुट फोल्डर पाथ, जो मेरा पाथ है कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर पाथ है, इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बने हुए हैं। एंड str कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स, हमें यहाँ पाथ मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स का। str एक्सट्रैक्टेड फोल्डर, जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है वो आपका क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स के नाम का है। ठीक है, नाउ आई विल बी क्रिएटिंग एन अनदर फोल्डर। यहाँ पे हमारा एक और फोल्डर बन चुका है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स के, सॉरी क्लाइंट्स डॉक्यूमेंट के नाम का। उसके अंदर किसके अंदर, यहाँ पे जाके एक मेरा फोल्डर बन गया है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जाके। ठीक है, सो आई कैन सी इट ऑल्सो ओवर हियर, डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यू फोल्डर हैज बीन created, but this folder is not yet being populated. ठीक है, now this part will be over here. अब मैं इसको ओपन करता हूँ अपने iteration को, let's see what it is going on over here. The first file that we'll be doing is contract 2022 PDF. If it is finding the name contract over here, and which it will be moving the file from full name means, okay, file not full name, so it will be moving the file over this file. See this file, it will be moving this file over here to where, str contracts। मैं ये वाला एक्सप्रेशन में आपको लिख के दिखाता हूँ, str contracts प्लस ये पार्ट आ गया प्लस फाइल डायरेक्टरी नेम, ठीक है, प्लस अ स्मॉल स्पेस एंड देन फाइल डॉट नेम। दिस पार्ट विल बी ये मेरा पार्ट आ गया कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक मेरा पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये पार्ट मैंने रखा हुआ है आपके ये वाले एक्सप्रेशन के साथ। ये फाइल डायरेक्टरी नेम ये है कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस फाइल का नाम पूरा आ गया। ठीक है, विद अ स्पेस, यहाँ पे स्पेस आ गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, राइट, दिस पार्ट विल मूव टू हेयर। जैसे मैं करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल आ गई है। मैं ऐसे से प्रेस कंटिन्यू करूँगा तो ये जितनी फाइल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स वाली वो सबकी सब यहाँ पे आ चुकी हैं, बट देयर मूविंग द फाइल। क्या कर रही है, मूव कर रहा है फाइल को, तो इसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइस, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर गाइस। Before the final run, let's कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मेरे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हैं वो यहाँ पे सबके सब आ चुके clean हैं। up our space a bit by deleting the extracted folder that we've been working in and the contracts folder. Now we're ready. Let's do it. अगेन मैं एक बार इसको डिलीट करके फिर से चलाता हूँ टू दैट हम लोग इनके हिसाब से चल लेते हैं एक बार। कॉन्ट्रैक्ट्स इट विल बी ओवर देयर, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, इट विल बी यूजिंग इट ओवर हेयर। ठीक है, एंड ये मैं पार्ट हटा देता हूँ। वन मोर थिंग गाइस, मेरे को एक और चीज़ आपको बतानी है दैट इफ़ यू आर यूजिंग, देखिए मैं आपको दिखा, अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो डायरेक्टरी नेम, तो जो मेरा डायरेक्टरी नेम है अगर मैं उसको एंटर करता हूँ वो आएगा ये। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डायरेक्टरी नेम तो क्या आएगा, तो पूरा आएगा, फिर एवरीथिंग विल बी देयर। उस डायरेक्टरी नेम और डायरेक्टरी डॉट नेम और डायरेक्टरी नेम में बस यही फ़र्क है। व्हेन यू विल बी यूजिंग डायरेक्टरी dot name, it will be only indicating that specific directory. If you will be using directory name, it will be indicating the whole directory। वो देख सकते हैं आप लोग पार्ट 1 उसके जितने भी प्रॉपर फुल पाथ है इट विल बी ओवर देयर। एंड अगर आप लोग ये लिखते हैं फाइल डॉट
फुल नेम, तो इट विल बी गिविंग यू द फुल नेम ऑफ द स्पेसिफिक फाइल. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस, राइट. सो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसके अंदर हमें ये सब फाइल्स मिल चुके हैं. ठीक है, वो जो स्पेसिफिक फोल्डर था जिससे हमने काम किया था वो डिलीट हो चुका है. उसके अंदर मुझे अब ये नहीं मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो मैंने डिलीट भी कर दिया था ऑन द गो. ठीक है, ये मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा फिर मिलेंगे. यहाँ पे जो क्लाइंट डॉक्यूमेंट न्यू फोल्डर था उसको ऑटोमेटिक डिलीट हो गया था, बट अगर वो नहीं डिलीट होता, हम ये पार्ट कमेंट आउट करते तो उसके अंदर ये सब आपको नहीं मिलता. कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड इनवॉइसेस आपको मिलते. ठीक है, दिस विल बी इट, राइट. आई होप इन लोगों ने भी ऐसे यहाँ पे The इसको एग्जीक्यूट किया, contracts folder with all of the contracts inside. राइट. And that brings us to the end of this demo. By sticking with us to the end in the folder, I hope this is to very clear, identify guys. the contract file, delete folders when we did so with the extracted folder. So there is a practice also over here. यहाँ पे practice exercise भी है. We will be seeing further develop the automation process built in the previous lesson. Task is to iterate through the document extracted from the zip file and extend the functionality to sort not only the contract but also the invoices to the respective folders. अब contracts के साथ साथ हमें क्या invoices भी करने पड़ेंगे. तो the first part will be यहाँ पे हमें invoices का एक path बनाना पड़ेगा, right? str_ invoices, and यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉरी invoices, and यहाँ पे I'll be creating an expression input folder path plus invoices. ठीक है, यहाँ पे एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम का फोल्डर बनेगा और एक मेरा बनेगा आपका रीड फोल्डर आपके इनवॉइसेस के नाम का. ठीक है, सो दैट 2 folders विल बी देयर एंड वी विल बी डिलीटिंग द 2 folders एज वेल. ठीक है, हम यहाँ पे फिर से उसको डिलीट करेंगे उस फोल्डर्स को जो न्यू फोल्डर बनेगा कॉन्ट्रैक्ट्स क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स के नाम का, राइट. तो वी विल बी यूजिंग अ .pdf एज वेल एक्सट्रैक्टेड फोल्डर. अब यहाँ पे हम जाएंगे और अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में डालेगा, अगर यहाँ पे नहीं होता है कुछ और होता है, लेट्स सी कुछ और क्या है, कोई और डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है हमारे पास. यहाँ पे क्विकली सी डॉक्यूमेंट्स, क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स. सो अब यहाँ पे इनवॉइस ही दिख रही है मुझे और कुछ नहीं है, राइट. इनवॉइस ही है, तो जो रेस्ट ऑफ द फोल्डर है इसको छोड़ के ऑटोमेटिकली इट विल बी कमिंग इनसाइड ऑफ इनवॉइस. मैं यहाँ पे मूव करूंगा फिर से अपनी फाइल को, राइट. व्हाट दे हैव सी, लेट्स सी. Save the extract the content of zip file, rename the contract invoice by incorporating corresponding for company name, save the rename contract file separate folder based on company names. ठीक है, create special for okay, यहाँ तक डन है. rename all invoices files by appending the original invoice with the respective company name. example इतना Megatronic invoice with original, rename all the invoice files by appending the original invoice name with the respective company name. Means invoice example Megatronic Incorporated PDF. Okay, move the rename and create a process folder, transfer zip file, all operation was completed. Okay, cool. तो गाइस हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जस्ट फॉर ए क्विक इंस्टेंस हमने यहाँ पे इसका जो इनका जो बनाया हुआ सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पे प्रॉपर डाउनलोड कर लिया है. बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डाउनलोडिंग सॉल्यूशन ओवर देयर. बिकॉज गाइज इन लोगों ने जो पहले भी हमें जो वीडियो दिया है वो प्रॉपर वहाँ पे नहीं है, राइट. तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट डाउनलोडेड अ सॉल्यूशन. एंड जो पहले भी इन्होंने जो हमें प्रैक्टिस करने को बोला है वो पहले की वीडियो से है, तो उससे हम इनके हिसाब से नहीं बना पा रहे हैं, राइट. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट डाउनलोड द सॉल्यूशन. मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. यहाँ पे वही हमने ब्राउज फॉर इनपुट फाइल की है, गेट द फाइल डॉक्यूमेंट्स, फाइल इन्फो पाथ अपने यहाँ पे दिया हुआ है, न्यू एक्टिविटी. यहाँ पे 2 चीज इन्होंने ऐड किए गाइस इन द दिस पार्ट, इनवॉइस फोल्डर पाथ एंड प्रोसेस्ड फोल्डर पाथ. में जो डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोसेस्ड हो जाएंगे दे विल बी ट्रांसफर टू अ न्यू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट. सो यहाँ पे जाके जो इन्होंने एक्सप्रेशन दिया है प्लस इनवॉइसेस, दे हैव जस्ट यूज लाइक दिस. एंड यहाँ पे जाके दे हैव जस्ट यूज एज प्रोसेस्ड ओनली. ठीक है, अनजिप इनपुट फाइल में आपको ब्राउज़र बताया था, इट विल जस्ट बी अनजिपिंग द इनपुट फाइल. अगर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ए न्यू एक्टिविटी यूज की है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर एग्जिस्ट्स, अगर वो एग्जिस्ट करेगा, इट्स टाइप ऑफ बुलियन वेरिएबल, राइट. तो अगर वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक
ठीक है, तो वो कुछ नहीं बनाएगा, पर अगर वो नहीं करेगा, अगर नॉट यहाँ लगा इन्वर्स करे तो वो एक न्यू फोल्डर बना देगा। द सेम विल बी रिपीटेड फॉर द इनवॉइसेस, सेम विल बी रिपीटेड फॉर द प्रोसेस फोल्डर। इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज ये हमने देख लिया है, राइट। सो this part as well, right, of some activities. And now for each file in the company folder, renames contracts and invoices in folder and moves them to your dedicated folders. तो इसमें सब कुछ जो काम हो रहा है वो आपका फाइल पाथ का ही है। इफ़ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ फाइल पाथ, आप इसको आराम से कर सकते हैं। So for each current file, they have used the current file over there, include subfolders. They will be including the subfolders as well, means the nested folders inside of the file paths. They have used the filter, asterisk लगाना ना भूलें, asterisk dot pdf. Else if contract और invoice means अगर यहाँ पे हम else if यूज़ कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कंडीशन होती है हमारी, अगर उसको तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो मैं क्या करूँगा, उसको मूव एंड रीनेम एंड मूव करवा दूंगा फाइल न्यू फाइल, राइट। दे हैव यूज करेंट फाइल डॉट फुल नेम, जो भी उसका फाइल है उसका फुल नेम यहाँ पे आएगा विद द डायरेक्टरी नेम एज वेल, एंड दे विल बी व्हाट, दे विल बी रीनेमिंग इट। रीनेम विल बी कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर स्लैश करेंट फाइल डायरेक्टरी नेम प्लस करेंट फाइल नेम, एंड हेयर इट विल बी फॉर द इनवॉइसेस, यहाँ पे फॉर द फुल नेम एज वेल। यहाँ पे इन्होंने एक एक्सप्रेशन यूज किया, बताया तो क्या ये पार्ट वही है, यहाँ से सेकेंड, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट आपका वही है जो मैंने पिछले में आपको दिखाया था एक्सट्रैक्टेड फोल्डर्स पाथ में, str_underscore एक्सट्रैक्टेड फोल्डर्स पाथ में कैसे हम लोगों ने प्रोक्यूर किया था, दैट इज द सेम पार्ट। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज बैक जाके देख सकते हैं, राइट, और यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एज वेल। This is nothing, they are just giving a space, directory.name, current file extension .toString, means they are adding an extension also over here, ठीक है। if I will be running the file, अगर मैं इसको रन करता हूँ इस फोल्डर को, इस फाइल को, तो पहले तो मेरे से पूछेगा कि कहाँ पे है मेरे पास वो फाइल्स। सो आई विल बी गिविंग इट, इसको विद द डाउनलोड्स पार्ट, दिस वी डोंट हैव अ documents client document open, ठीक है। अब नाउ लेट्स क्विकली रिफ्रेश इट। डॉक्यूमेंट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस, प्रोसेस, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके अंदर इनवॉइसेस हैं, एंड इसके अंदर है आपका प्रोसेस्ड। द प्रोसेस पार्ट इट विल बी व्हाट, इट विल बी, देखिए, मूव्स द प्रोसेस डॉट जिप फाइल टू द प्रोसेस्ड फोल्डर। मतलब जो भी मेरी ये डॉट जिप फाइल है क्लाइंट डॉट डॉक्यूमेंट्स की, वो आपकी कहाँ मूव हो जाएगी, डायरेक्टली इन द प्रोसेस फोल्डर, मीन्स दिस आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। So guys, with this we have completed a very simple working with files in folder. इसमें कुछ था नहीं चैप्टर इस मॉड्यूल में, तो we have also completed the whole module in a single go. In the next part I'll be discussing some important questions. There are 6 questions, ज़्यादा नहीं है, तो what we can do, we can do it in this part. No, it's too much. सो हम उसको नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस, ठीक है। इन द नेक्स्ट मॉड्यूल मैं आपको बताया तो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ। द नेक्स्ट मॉड्यूल विल बी, आई थिंक इट वाज ईमेल ऑटोमेशन, राइट, या email automation, very important chapter and module in the UiPath automation series that I am doing right now, and we'll be halfway to the associate part, ठीक है। Thank you so much over there, and as always keep learning.